دے دیا تو پھر یاد رکھنا قبر کے بعد جب میدان محشر لگے گا، میدان محشر برپا ہوگا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا 3 حالت میں لوگ اٹھیں گے، 3 طبقے ہوں گے، 3 جماعتیں ہوگی۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ 3 جماعتیں کون ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا ایک وہ ہوگا جو قبر سے اٹھے گا، ساتھ میں سواری ہوگی، اس سواری پر سوار ہو کر میدان محشر کی طرف جانا ہوگا۔ ایک وہ ہوں گے جو سواری نہیں ہوگی، پیدل چل کے میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہوگا وہ سر کے بل جنہیں ہم اپنے چہرے کے بل گھسیٹتے ہوئے میدان محشر کی طرف لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ان کے پاؤں آسمانوں کی طرف ہوں گے، ان کے سر زمین پر ہوں گے، ان کے چہرے سے گھسیٹ دیا جائے گا یا میدان محشر میں جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھ لینا، میدان محشر میں جیسے لوگ پہنچیں گے ویسا حساب شروع نہیں ہوگا، اتنا دہشت والی زمین ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آسمان اس طرح سے ہوگا کہ سورج آگ برساتا ہوگا، آدم بھی ڈر چکا ہوگا، نبی سارے سجدوں میں پڑے ہوں گے۔ اللہ کو اتنا جلال ہوگا کہ رب کی بارگاہ میں کوئی مجال ہی نہیں کرے گا کہ میں بات کروں گا، رب کو اتنا جلال ہوگا۔ اللہ اکبر، اب حساب نہیں ہو رہا ہے، لوگ پسینے میں ڈوب چکے ہیں، اتنا پسینہ آ چکا ہے کہ ایک روایت کے مطابق 70 گز اوپر پسینہ چڑھ چکا ہوگا، لوگ پسینے کے اندر تیر رہے ہوں گے، لوگوں کی ہڈیاں پگھل چکی ہوگی، زمین پر گوشت گر رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، لوگ آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، اے آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ہماری یہ شکایت لے کر جا، اللہ کی بارگاہ میں ہمارے یہ عرض لے کر جا، اے اللہ اگر تو نے جہنم میں ہی ڈالنا ہے جہنم میں ہی ڈال دے، لیکن ہمارا حساب تو کر لے، ہمارا حساب تو کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچانی ہوگی آدم علیہ السلام کے لیے، اور لوگوں آج رب جلال کے اندر ہے، اور لوگوں آج رب کا غضب بڑا خوفناک ہے، اور لوگوں آج رب کی بارگاہ میں میری کوئی مجال نہیں ہے کہ میں بات کر پاؤں گا۔ مجھے اپنا ڈر ہے کہ میں نے جو گیہوں کا دانہ کھایا تھا اس کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے، لہذا آج میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، نوح کے پاس بھی جائیں گے، جواب ملے گا نہ نہ میں تمہاری کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آخری وقت ہوگا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، یہ جنت والی شفاعت نہیں ہے، یہ شفاعت حساب والی ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ 300 سال گزر گئی ہے، اے آقا قبروں سے کھڑے ہوئے 300 سال گزر گئی، آسمان نے ہمیں جلا دیا ہے، زمین نے ہمیں جلا دیا، اے اللہ کے رسول حساب شروع نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آج اللہ کی بارگاہ میں عرض کر لے، ہم گناہگاروں کا حساب تو لینا، ہم گناہگاروں کا وزن تو کر ہمارے عمل کا۔ 300 سال کے بعد جا کر حساب شروع ہوگا۔ آج دنیا کی 60 سالہ زندگی کے لیے ہم در بدر گھومتے ہیں، مجھے بتاؤ 300 سال میدان محشر میں کھڑا ہونا پڑے گا، حساب کا انتظار کرنا پڑے گا، 300 سال کے بعد جا کر حساب جاری ہوگا۔ اور پھر حساب کیا ہوگا؟ جس بندے نے ظلم کیا ہوگا اس کے بدلے میں اس کے عمل دیے جائیں گے، اور ظلم جس پر کیا اس کی نیکیاں دی جائیں گی، جس کا قرض ہوگا قرض کے ادا میں نیکیاں ادا کی جائیں گی، یعنی دیگر گناہوں کے بدلے میں آپ کی نیکیاں ان کو دی جائیں گی، ان کے گناہ آپ پر ڈالے جائیں گے۔ جب یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا، اب جو نیکیاں بچی وہ نیکیاں ترازو میں رکھ دی جائیں گی، وہ نیکیاں اس وقت آپ کے ترازو میں رکھ دی جائیں گی۔ میرے مصطفیٰ کریم میدان کے سامنے آ کھڑے ہوں گے، ایک جوان ہوگا، اس کے جب ترازو میں عمل ڈالے جائیں گے تو اس کی جو ہے نیکیاں کم گزر جائیں گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ کا ترازو پکڑ لیں گے، کہیں گے او فرشتوں رک جاؤ، اسے جہنم میں نہیں پھینکنا۔ پوچھا جائے گا آقا کیوں نہیں؟ کہے گا ایک وقت تھا نا یہ اکیلا تھا، اس نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ مجھے راضی کرنے کے لیے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑا تھا، آج میں نے وہ اس کے ترازو میں ڈال دیا ہے، اس کے سارے گناہ جو ہے نیکیوں میں بدل جائیں گے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آج نبی پہ درود پڑھتے ہوئے شرماتے جاؤ گے تو قیامت میں رسوا ہوتے جاؤ گے۔ آج نبی پر اگر درود پڑھتے ہوئے شرماتے جاؤ گے قبر میں رسوا ہوتے جاؤ گے۔ آج نبی پر اگر درود پڑھنے میں اگر شرماتے رہو گے، لوگوں جب میدان محشر میں کسی نبی کی نہیں سنی جائے گی اس وقت شرماتے جاؤ گے، آب کوثر کو شرمانا پڑے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کا محاسبہ کرو اور اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر ڈال دو۔
अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, हम जिना की तरफ नहीं जाएंगे, हम शराब से की तरफ नहीं जाएंगे, अल्लाह हम झूठ और गीबत नहीं बोलेंगे। एक सारा बच्चा एक जंगल के अंदर है जहाँ कोई बस्ती नहीं है, इस जंगल के अंदर ये बच्चा रो रहा था। अल्लाह अकबर, एक सोफी को आवाज आई, इस जंगल के अंदर रोने की आवाज आ रही है। उस सोफी ने जाकर उस जंगल में जब देखा ये रोने वाला कौन है, ये चिल्लाने वाला कौन है, पास गया तो कोई देखता है कोई बड़ा आदमी नहीं था, कोई जवान नहीं था, 8 साल बच्चा अल्लाह अकबर रो रहा है। उस सोफी ने कहा, ओ बेटे, ओ बच्चे, तू अभी इतना छोटा है, छोटी उम्र के अंदर है, तू रो क्यों रहा है, तू इतना चिल्ला चिल्ला क्यों रहा है। वो सजदे के अंदर पड़ा हुआ था। बच्चे ने सर उठा कर कहा, ओ अल्लाह के बंदे, तूने मेरा विरद जाया कर दिया, तूने मेरा सजदा जाया कर दिया। अल्लाह अकबर। उस जवान ने कहा, ओ बच्चे, मैंने तेरा सजदा तो नहीं जाया किया, मगर ये पूछना चाहता हूँ तू रो क्यों रहा है। उस बच्चे की जवाब सुनो, उस बच्चे की बात सुनो। बच्चा क्या कह रहा है, ओ नौजवान, मैं इस जंगल के अंदर जहाँ कोई बस्ती नहीं है, इसके अंदर आकर अपने अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ घर के अंदर मेरी माँ चूल्हा जला रही है। पहले उसने बड़ी लकड़ियों को रखा, जब उन बड़ी लकड़ियों को आग नहीं लगी, फिर मेरी अम्मा ने छोटी छोटी लकड़ियां लाकर उनको आग लगाई, उनकी वजह से बड़ी लकड़ियों को आग लग गई। ओ जवान, मुझे डर इस बात का है, कल अल्लाह जब फिरौन को जहन्नम में फेंकेगा, जब हामान को जहन्नम में फेंक देगा, जब कारून को जहन्नम में फेंक देगा, अबू जेल को जहन्नम में फेंक देगा, जब उन बड़े बड़े काफिरों को, बड़े बड़े गुस्ताखों को आग नहीं लगेगी, तो रब फरमाएगा, ओ मेरे फरिश्तों, इन बड़ों बड़ों को आग लगाने के लिए इन छोटों को रख दो। जिस तरह मेरी अम्मा ने छोटी लकड़ी रखी है, मुझे डर लग रहा है, मैं डर चुका हूँ, मैं गुबरा इस बात से रहा हूँ, कहीं उस में जब फिरौन को आग में डाला जाए, उसको आग न लगे, उसकी आग को जलाने के लिए मुझे आग में दाखिल न किया जाए। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अपने कुर्बानों में जरा जान को, नाबालिग बच्चा भी अल्लाह के अज़ाब से डर रहा है, बस्ती छोड़कर जंगल में चला गया। अल्लाह अल्लाह, आज हमारी 25-25 साल उम्र गुजर गई, आज 30-30 साल, 60-60 साल उम्र गुजर गई, नमाजों का पता नहीं है, इबादत का पता नहीं है, सजदे में सर रखने का पता नहीं है, जवानी बर्बाद हो रही है, जवानी हलाक हो रही है, दिन ब दिन रात ब दिन रात चले जा रहा है। ओ लोगों, मौत ऐसी चीज है, ना नबियों को बख्शा है, ना वलियों को बख्शा है, ना किसी कुतुब को, नबदाल को बख्शा है। मेरे है हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी। हसन बसरी बड़े मशहूर वली हैं। ये जिनाजे के साथ में गए, ये जिनाजे के साथ गए, एक छोटी बच्ची थी, उसका बाप का जिनाजा जा रहा था, उस बच्ची ने जिनाजे को लिपटी हुई उस जिनाजे के नीचे नीचे कब्र के अंदर पहुंची। जब लोगों ने जिनाजे को कब्र में उतारा, कब्र में उतार कर लोग अपने अपने घरों की तरफ गए, भाग गए। हसन बसरी कहते हैं, मैं एक झाड़ी के अंदर, यानी थोड़ी साइड में दरख्त है, उनमें छुप गया, जरा ये बच्ची अब क्या करेगी। उस बच्ची ने क्या कहा, अल्लाह अल्लाह, अगर ये जुमले हमारे ज़हनों में उतर जाए। पर हसन बसरी फरमाते हैं, जब उस जवान को, उस बाप को कब्र में उतारा गया, उस बेटी ने क्या, वो दो लोग चले गए। बेटी कहने लगी, ओ मेरे अब्बा, कल तो बीमार था, बिस्तर पर था, ए अब्बा, कल मैं तुझे सरहाने तकिया रखती थी, आज तेरे सरहाने तकिया कौन रखेगा। ओ मेरे अब्बा, कल तू बीमार था, मैं तेरी लातें दुबाती थी, आज कौन दबाएगा। मेरे अब्बा, कल मैंने बिस्तर डाल के दिया था, आज कौन देगा। मेरे अब्बा, कल प्यास लगती थी, मैं पानी पिलाती थी, आज कौन पानी पिलाएगा। ओ मेरे अब्बा, कल तुझे अगर दर्द होता था, मैं दवाई देती थी, आज तुझे कौन दवाई देगा। इसी तरह अपनी कुर्बानों में देखो, कल हम कब्र में जाएंगे, सारे तकिया हट जाएंगे, सारे सरहाने हट जाएंगे, सारे बिस्तर हट जाएंगे, सारे पर्दे हट जाएंगे, और अपनी कब्र के अंदर हिसाब देना होगा। जरा मुहासबा करो, जरा जायजा करो। ये महीना वो महीना है जिस महीने के अंदर अल्लाह की बारगाह में हमारे अमल जाने वाले हैं, हमारे सारे के सारे करतूत जाने वाले हैं। हमने अल्लाह की बारगाह में कौन से अमल किए हुए हैं, जो अमल हम अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, जो अल्लाह को देने के लिए हमारे पास रखे हुए हैं। अल्लाह अकबर, हम खाली हाथ हैं, हम खाली हाथ हैं, हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, हमारा किरदार बुरा है, हमारा लिहाजा बुरा है, हमारा इखलाक बुरा है, हमारी सब चीजें कुछ हमारे पास नहीं है। लेकिन याद तो करो, मरना जरूर है, दुनिया छोड़ कर जाना
जाना है, जिंदगी छोड़ जाना है। हमारे बीच में कई पिछले साल से आज तक नौजवान थे, आज वो नहीं है, कहाँ हैं? अपनी कब्रों के अंदर हैं। इसलिए अपनी जिंदगी को तोलो, अपनी जिंदगी का वजन करो। अल्लाहु अकबर। एक प्यारे वली का वाक़या तारीख के अंदर आता है कि वो रात को सोया हुआ था, इतने में एक जनाजा आया और कब्र से दो कब्र वाले उठकर ऐलान करते हैं, ए अल्लाह के बंदे, खुदा का वास्ता हमें इसे बचा, खुदा का वास्ता हमें इसे बचा। उसने कहा किससे बचाना है, क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। वो दोनों कब्र वाले कहते हैं एक जनाजा आ रहा है, ये जनाजा यहाँ पर दफन किया जाएगा, इसको हमारे साथ निकाला जाएगा, लिहाजा खुदा इसको हमारे साथ दफन न किया जाए, इसको यहाँ मत कब्रिस्तान में लाया जाए। अल्लाह के वली, तो ये खुदा का वास्ता हमें इस मलून से बचा, हमें इस लानती इंसान से बचा, इसकी वजह से हमें भी अजाब होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब ये सुबह जागा, ये वली इसने ये ख्वाब देखी, तो ये जागा तो इसने हैरान था कि रात की जो मैंने ख्वाब देखी, आखिर इसका जो अजर क्या है, इसका आउटपुट क्या निकलने वाला है, इसकी ताबीर क्या है। इतने में देखता है एक औरत का जनाजा आ रहा था। अब ये समझ गया जो रात की ख्वाब के अंदर मुझे कहा था कि ये जनाजा आ रहा है, इसको इस कब्रिस्तान में मत उतारने देना, इसको हमारे साथ दफन मत होने देना। इमाम तो शवाब समझते थे कि ये वो रात की ख्वाब है। इस अल्लाह के वली ने वो जनाजे वालों को रोका, रोक कर कहा कि इस कब्रिस्तान के अंदर मैं इसे दफन नहीं करने दूंगा, लिहाजा दूसरे कब्रिस्तान के अंदर इसको दफन किया जाए। अब जब इसको दूसरे कब्रिस्तान के अंदर दफन किया गया, रात फिर ये सोया, इसको वो दो बंदे फिर से ख्वाब के अंदर आए, कहने लगे अल्लाह का शुक्र है और आपका शुक्र अदा करते हैं, आपने हमें इस मलून से, आपने हमें इस लानती से, आपने हमें इस बदबख्त इंसान से बचाया। अगर ये हमारी कब्रों के साथ इसकी कब्र खोदी जाती थी तो हमें भी तकलीफ होती थी, आपका बड़ा हम शुक्र अदा करते हैं, आपने हमें तकलीफ से बचाया। उसने कहा कि अल्लाह के बंदो, आप ये बात तो बताओ, आखिर इसका जुर्म क्या था, आखिर ये क्या गुनाह करता था, कब्रिस्तान में अगर दफन करते मुर्दों को तकलीफ होती थी। और कब्र वालों ने जवाब दिया, कहने लगे ये बेनमाजी है, और जब बेनमाजी किसी कब्रिस्तान के अंदर आता है, पूरे कब्रिस्तान को मुशक्कत उठानी पड़ती है, पूरे कब्रिस्तान के अंदर जो है सन्नाटा छाया जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोगों, अपने आप का जायजा तो लो, अपने कुर्बानों में झांको। हम जवान हैं, हमने इस मिट्टी में सोना है, क्या हम इस मिट्टी में सोने के लिए तैयार हैं, क्या हमने इस मिट्टी के अंदर सोने के लिए कितनी तैयारी की है। ये सारे रिश्ते नाते, ये सारे दोस्त, ये सारे फेसबुक, ये सारे व्हाट्सएप, ये सारी गेमें, ये सारे फ्री फायर जो तुम खेलते हैं, ये सारे के सारे जब तुम्हारे सांस निकल गए ये रह जाएंगे, और तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त तुम्हें कब्र में उतारने तक जाएंगे, वहां से सारे वापस आ जाएंगे। निमरू से बताया जा रहा था आ नमाज के लिए तो ही वो बंदा है जिसको मेरा कुरान पढ़ पढ़ के कहा जाता था, आ खुदा का खौफ था, आ सजदे के अंदर तो ही है वो बंदा जिसको मैंने सारी दुनिया के अंदर सब कुछ बताया था कि कब्र इस तरह की है, तेरे अंदर टस पे बस नहीं जाती थी, तुझे परवाही नहीं होती थी, तो ही वो बंदा है। आओ मेरे फरिश्ते, जाओ इसकी कब्र के अंदर हिसाब लो और इसे पूछो। वहां मामा या मौसी या चाचे वगैरह को हिसाब के लिए नहीं फरमाएगा। बारगाह में तौबा करो, नमाज अदा करो, सिर्फ वो नमाज अदा नहीं जो 5 फर्ज हो चुकी हैं, अगर पीछे कज़ा करके आए हैं तो कज़ा भी नमाजें साथ में पढ़ो और अपने तमाम कबीरे और सगीरे गुनाहों के अंदर से तौबा करो। ये रात वो रात है जिस रात के अंदर हमारे अमल का बंटवारा होगा, हिसाब होगा, किसने मरना है वो आज डिक्लेयर हो जाएगा, किसने जीना है, किसने हज पे जाना है, किसने क्या करना है, ये सारे फैसले हो जाएंगे।